Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Akshay, and I welcome you all to the webinar presented by Wealth Clinic. शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी गुजारिश है। हम सभी प्रेजेंटर्स अपने अपने घरों में लॉकडाउन की वजह से वर्चुअली कनेक्टेड हैं। तो हो सकता है वेबिनार के दौरान अगर आपको नेटवर्क से रिलेटेड या प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन प्रेजेंटर्स जब आपस में ट्रांजिट करते हैं उसके टाइम पर अगर कोई डिले का सामना करना पड़े तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही एक्सक्यूज की रिक्वेस्ट करता हूं। प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर दैट। आप सभी लोग काफी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि आज के इस सेशन में, आज के इस वेबिनार में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना ज्यादा वक्त जाए किए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सभी को हैरान और परेशान करने वाला कोरोना वायरस, उसके बाद कोरोना वायरस का वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट है, हमारी इंडियन इकोनॉमी पर उसका क्या इंपैक्ट हुआ। घबराइए नहीं, हम न्यूज चैनल की तरह आपको डराएंगे नहीं। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव बातें हैं जो इस वेबिनार में हम आपके साथ करेंगे। इस सब के बीच इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली we'll discuss on the future of real estate and other investment options. We are also launching some exciting lockdown offers in the webinar. Finally, we will answer to that big question in your mind, where to invest. At Wealth Clinic, we firmly believe in building relationship. Wealth Clinic is a real estate consultancy company with a business and research experience of more than a decade. Wealth Clinic takes a pride on providing property investment solutions to over 10,000 happy investors. By now, can you believe it? 15 million square feet out of the total space sold has been delivered and has given exciting returns to the investors and satisfaction to the end users. Let me quickly take you to a virtual tour of our organization. It will surely help you to understand the level of benchmark that we have established within the industry. Just give me a moment. I'll quickly play a video for you. I hope you enjoyed the tour. अब मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा आज के हमारे स्पीकर्स से। It is our honor to have Mr. Amit Raheja, who is the CMD of Wealth Clinic. He is the man behind Wealth Clinic with more than a decade of experience in real estate industry. Prior to founding Wealth Clinic, उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ज्वाइन किया। मिस्टर रहेजा ने काफी यंग एज में अपने करियर की शुरुआत की। He always had the true inherited qualities of an entrepreneur. We also have Mr. Bipin Balakrishnan in the panel, who is a Director of Business Relations in Wealth Clinic. He has over 25 years of work experience in different sectors like auto, plastics, and real estate industry. He has worked in India, Oman, Qatar, Ghana, and Tanzania. And lastly, I am Akshay Seth, who proudly work as an Assistant Director of Strategy Operations in the company. I have been into real estate industry for more than a decade. And with my experience, I am now developing innovative tech solutions for the industry.
Now, I'll take just about 5 seconds to request our CMD, Mr. Amit Raheja, to please connect with us and share your valuable viewpoints on the current scenario. Sir, over to you. करूंगा मैं उसके बाद ना रहेजा आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सबने अपना कीमती समय निकाला। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये वेबिनार एक पॉजिटिव एटीट्यूड से तैयार किया गया है, क्योंकि पीछे कुछ मंथ से हम काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे थे, उसने हमको काफ़ी डिस्टर्ब किया। तो हमने कहावत याद आई हमें एक, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हम वो अच्छाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, आपके जीवन में भी आए होंगे, मेरे जीवन में भी आए। तो इन उतार चढ़ावों ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि अगर आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव तो सोचना पड़ेगा। जैसे पतझड़ के बाद बाहर आती है, तो आइए शुरू करते हैं इस आशय के साथ कि कोरोना के बाद कैसे और क्यों बाहर आएगी। Before we start our webinar, we would like to thank and salute the bravery of medical staff, doctors, media, police, delivery boys, and essential services for their unconditional contribution. कोरोना से जंग अगर जीतनी है तो मानवता को आगे आना होगा, क्योंकि कोरोना किसी धर्म को नहीं जानता, और ऐसा हुआ भी। सभी धर्म के लोग आगे आए और उन्होंने इंसानियत की मिसाल कायम करी। दोनों हाथों से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और कर रहे हैं। इंडिया टुगेदर हैज प्रूव्ड दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो मैं उन सबको नमस्कार करता हूं और नमन करता हूं। कोरोना आज हमारी जिंदगी से ऐसा जुड़ गया है कि रोजमर्रा का एक नाम बन गया है। इसने क्या इफेक्ट डाले हमारी लाइफ के अंदर, तो आइए इफेक्ट्स की बात करें। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सभी ने जिंदगी की अहमियत समझी है। हम सब अपने घरों में बंद हो गए, जिसके चलते हम अपने नियर एंड डियर से दूर हो गए। स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स बंद हो गए। मैरिज पार्टीज भूल जाओ। जॉब और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी हमें सताने लगी, यानी कि बाहर जाना बिल्कुल बंद। पर दोस्तों, कोरोना इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मैनकाइंड हैज फेस्ड दीज टाइप ऑफ पेंडेमिक्स इन द पास्ट ऑल्सो। ऐसी महामारी पहली बार नहीं आई, इतिहास गवाह है। इससे पहले भी बहुत से डिजास्टर्स मैनकाइंड ने फेस किए और हमेशा डटकर उनका सामना किया है। पहले भी बहुत पैंडेमिक्स को हमने हराया है अपने आत्मबल और साहस से, और इस बार भी हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। सो लेट्स स्टे पॉजिटिव एंड प्लान फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। द शो मस्ट गो ऑन माय फ्रेंड्स। व्हाट आफ्टर लॉकडाउन? ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में चल रहा है, और आप सब ने सुना भी होगा कि एक्सपर्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ह्यूज डाउनफॉल विल कम इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये गलत या सही मैं नहीं जानता, पर इससे पहले भी एक्सपर्ट्स ने कई प्रिडिक्शंस किए, और हमने अपनी विल पावर और मोटिवेशन से ऐसी परिस्थितियों में विजय हासिल की है। किसने सोचा था कि जापान का कोई फ्यूचर होगा हिरोशिमा के बाद? बट आज हम सभी जानते हैं जापान इज वन ऑफ द इकोनॉमिकल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। इंडिया कुड नॉट हैव बीन won the World Cup in 1983 as per expert prediction, बट उन्होंने वो गलत साबित किया। अपने मोटिवेशन से और विल पावर से हम वो वर्ल्ड कप जीते। ऐसा ही एक रूल एरोडायनेमिक्स का है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिसका शरीर भारी है और पंख छोटे हैं तो वो उड़ नहीं सकता, पर भौरा
शायद इस रूल को नहीं जानता और वो उड़ता है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोरोना वायरस को भी हराना मुमकिन है, बस जरूरत है तो पॉजिटिव एटीट्यूड की। कोरोना से घबराना नहीं है, सुरक्षा जरूर करनी है अपनी, अपने घर वालों की, अपने बुजुर्गों की, अपने बच्चों की। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, यही मंत्र है कोरोना को हराने का भी। और एक और मंत्र है साहब जो मैं आपको देना चाहूंगा, और खासकर से शादीशुदा मर्दों को, कि साहब कोरोना से डरना है, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। सॉरी, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं, और बीवी से डरना है, लड़ना नहीं। ध्यान रखिएगा, हमारा जीवन सुखी रहेगा। आइए अब बात करते हैं किस प्रकार कोरोना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और इसे कैसे हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव इफेक्ट डालें। आप याद करें कि आपने कब परिवार के साथ इतना समय बिताया था। आज हमारे पास समय है इंट्रोस्पेक्शन करने का। आज हम अपने स्किल्स को ब्रश कर सकते हैं, हम फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ के अपना विजडम बढ़ा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नेक्स्ट लेवल पर चला गया है, लाइक वेबिनार, ऑल द वीडियो कॉल्स वी आर डूइंग, वर्क फ्रॉम होम, ईटीसी। ये लाइव एग्जांपल है। इवन बी और सी कैटेगरी टाउन्स के अंदर भी छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदारों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बल देगा। आज एक बहुत अच्छी चीज हुई कि आज हम वो नीला आसमान देख सकते हैं, साफ हवा, चिड़ियों की चहचहाट वापस आ गई है, साफ पानी, हमारा नेचर सेल्फ क्लींजिंग मोड पर है। ये सब कुछ जो हमारे पास चल रहा है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करता है। ये टाइम है अपने को रिचार्ज करने का। जैसा कि हम ये वॉल पेंटिंग में देख रहे हैं, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि दिस वायरस इज एक्चुअली वेकअप कॉल फॉर द एंटायर मैनकाइंड। वी शुड रीस्टार्ट building a new and loving society. We should also not take our liberty and nature for granted. Wake up call, क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य ये है, we have to take care of our environment. आगे भी ऐसे बीमारियां और आ सकती हैं, तो हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जापान की तरह अपना हाइजीन रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी, समझदारी से अपना फ्यूचर प्लान करना पड़ेगा, समझदारी से इन्वेस्टमेंट प्लान करने पड़ेगा। जो बात हम सब कह रहे हैं अपनी जीवन शैली बदलने की, वही रिक्वेस्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। वो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, और अभी लॉकडाउन कुछ समय तक और रहेगा। हमें हमारे सीनियर सिटीजन को और ज्यादा अभी घरों में रहना पड़ेगा। ये हमारा सेक्रीफाइस है जो कोरोना से हमें जिताएगा, और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए हम सबका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक पीएम केयर फंड्स का शुरुआत करी है। हम सब आपसे अपील करते हैं कि पीएम केयर में अपनी श्रद्धा से डोनेट करें, इट विल हेल्प द सोसाइटी। बहुत बातें हो गई, आइए कुछ अच्छी बातें भी आपसे करते हैं कोरोना के बारे में। जो गवर्नमेंट का डाटा आया वो ये शो करता है कि कोरोना वायरस जो फैलने का स्पीड है वो थोड़ी कम हुई है, 22% से 8% पर आई है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। इंडिया अब तक बहुत मजबूती से इससे लड़ रहा है, और ये अब तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट किसी डेमोक्रेसी का लॉकडाउन है जो इंडिया के अंदर हुआ है। कुछ खबरें और भी हैं जिसमें प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट की टेस्टिंग की जा रही है। यूएस और यूके में भी अभी तक जो वैक्सीन टेस्ट की है उसके काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट आए हैं। पुणे की एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, वो भी वैक्सीन पे वर्क कर रहे हैं, और दे आर रेडी फॉर द टेस्टिंग। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि इतनी जल्दी अगर किसी चीज की किसी बीमारी की वैक्सीन बनाई जाती है। और जो भी कोशिशें अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने
कोविड-19 के अगेंस्ट की हैं, उसका पूरे वर्ल्ड में उसको प्रेज मिल रहा है। इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन के आगे आ रहा है। हमारे डॉक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों को बता रहे हैं कैसे कोरोना से हम और बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। और जो भी अभी तक हमने इनिशिएटिव्स लिए, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स, WHO, पीएम मोदी के सारे इनिशिएटिव्स जो उन्होंने अब तक कोविड-19 के अगेंस्ट लिए उसे काफी प्रेज कर रहे हैं। जब अच्छी खबर आती है तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। तो ऐसी समय में एक खबर और आई, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने सारी कंट्रीज से डाटा कलेक्ट किया और उसके हिसाब से उन्होंने जो रिसर्च की, एज पर देम उन्होंने हर कंट्री का एक प्रेडिक्शन किया है कि कब तक वहां पे कोरोना का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो उनके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो बड़ी अच्छी खबर उन्होंने दी है कि 97% कोरोना 21 मई तक इंडिया से खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, जिसकी हम उम्मीद भी करते हैं और भगवान ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, तो चीजें फिर से पटरी पे जल्दी से जल्दी लौटने लगेंगी। आइए अब ज्यादा आपका समय न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर बिपिन बालाकृष्णन जी को, जो आपको वर्ल्ड इकोनॉमी और इसके क्या इफेक्ट्स कोरोना के होंगे के बारे में बताएंगे। बिपिन जी। Thank you very much, Amit Bhai, for the insight that you have provided on the Corona and COVID-19. Very good afternoon to all the ladies and gentlemen, and a warm namaste to all of you from whichever part of the world that you have logged in from. I thank you all for the effort and the trouble that you have taken to tune into this webinar. When you're confined in your house, you tend to be a bit, lax. Now let's touch upon the world economy. The world economy in nominal GDP terms is around $92 billion, and the world GDP in PPP is $130 million. अब आप सोच रहे होंगे कि नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी पीपीपी में क्या फर्क है? Nominal GDP is GDP evaluated at current market prices, and it also takes into account the current exchange rate, which is rupee is 1:76. अब हम PPP की बात करते हैं. In PPP, what happens is that the cost of living of that particular country is taken into account. To give you an example, a cup of coffee in the United States costs you, say for example, $1, but in India, a cup of coffee would cost you ₹30. Hence, the exchange rate factored in PPP would be 1:30, whereas in the earlier example of nominal GDP, it was 1:76. यही difference है इन दोनों terms में. Going to the next slide, we're going to talk about the top 10 world economies. As you would see, in the year 2010, India's ranking was number 9, and in the year 2019, we have climbed up to the 5th position by overtaking very huge economies like the United Kingdom and France. What does this show? It just shows that the economical fundamentals of India are extremely strong, and we have got, again, a great future ahead of us. अगली स्लाइड में हम समझते हैं कि हर रिसेशन के बाद जो अर्थव्यवस्था का रिकवरी होता है, जो सुधार होता है, वो कैसे होता है? जैसे कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर है, दैट इज किलोमीटर्स, ऐसे ही लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लीटर्स को यूज करते हैं। ऐसे ही किसी भी अर्थव्यवस्था को मेजर करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है, दैट इज कर्व्स। आज हम आपको 3 मेजर कर्व्स के बारे में बताएंगे, जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि रिकवरी इकोनॉमी की कैसे होगी। तो जो पहली कर्व है, दैट इज V, द सेकंड वन इज U, एंड द थर्ड वन इज L। जो V शेप कर्व आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये नीचे आती है इकोनॉमी और एकदम ऊपर चली जाती है, यानी कि 1 से 2 महीने में अर्थव्यवस्था वापस तेजी मतलब ऊपर जाना शुरू कर देती है। अगर आप U की बात करते हैं तो U जो कर्व है, उसमें आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था नीचे आती है
कुछ समय तक नीचे रहती है और फिर ऊपर जाना शुरू करती है। तो ये करीबन 5 से 6 महीने लेती है दोबारा ऊपर उठने में। अगर हम एल की बात करते हैं, ये डेंजर जोन है, रेड कलर में आप देख रहे हैं ऐसे मार्क्ड है। ये अर्थव्यवस्था जब नीचे आती है तो काफी समय तक नीचे रहती है और फिर ऊपर जाना शुरू करती है। तो ये आप मान के चलें साल से 1.5 साल ले लेती है दोबारा जब ये ऊपर जाना शुरू करती है। ये हम आपको कर्व इसलिए बता रहे हैं कि आगे आपको हम जो ग्राफ दिखाने वाले हैं उससे आपको ये अंदाजा हो पाएगा कि वी शेप रिकवरी कैसे होती है और अभी तक वर्ल्ड में जब भी रिसेशन आया है तो ये रिकवरीज कैसे हुई हैं। This is the graph that you see of the total world economy and a 30-year trend. This 30-year trend has been split into 3 distinct phases of 10 years each. The first phase is from the year 2000 to 2009. And what happened in the year 2000? In the year 2000, the economy was down. Why? Because of the blasts of the Twin Tower, which impacted the entire world's economy. Now, due to outsourcing, smart technology, and communication industries, which started flourishing, the economy again started going up, which was until the year 2008-2009, when the GFC, which is also known as the global financial crisis, hit the entire world very badly. This resulted in the banking and financial sectors crashing. And as you all know, ladies and gentlemen, the backbone of any industry is money. If the banking and financial sectors collapse, the entire business again starts collapsing. Now we shift to the second stage. The second stage is for the year 2010. This is when, due to the e-commerce, logistics, and social networking industries, we started doing well, the economy again started going up. And we again take you back to the V curve recovery after every recession. And this is again which happened in the second phase. Now, what happened again? Due to the advent of trade wars, liquidity crisis, and introduction of Brexit, again the economy started coming down, which was the epicenter was Europe. Now we come back to the third phase, and which is where we find ourselves right now. We find ourselves in the year 2020, and due to the COVID-19, we find ourselves again at the bottom of the economy. But there is always light at the end of a tunnel. And what are the industries that are going to see us take us ahead? These are blockchain, artificial intelligence, robotics, which will again see our economy going up. Now we talk about the current stage of the US economy. When the corona crisis started in the US, everyone had predicted, especially in the US, that they would have a V-shaped recovery curve. But after a few months, it was again changed to a U-curve recovery. And right now, ladies and gentlemen, the predictions are for a L curve. Now, why is this happening? This is only happening because even though US was a superpower, they did not take adequate precautions in terms of social distancing and also in terms of, as you could say, hygienic factors and lockdowns. Now, let us talk specifically about, what this would entail is, due to the recession in the US, the IT industries and pharma industries would be suffering. And who would be the gain over here? The gainer would be India, because we are extremely strong in pharma and IT related. Now, if we finish talking about the world economy, let's talk specifically about the Indian economy. India's economy in nominal GDP is $3.2 trillion. Ladies and gentlemen, that's about 4% of the world economy. अब आपको याद होगा कि हमने पहले PPP के बारे में बात किए थे, which is purchasing power parity. And if you measure India's economy in terms of PPP, we are at a very, very healthy $11.33 trillion. This takes us, you would be very pleased to know, ladies and gentlemen, to the third position overall when it comes to PPP. Let me go to that. Now, let's show you some data where India is extremely strong in natural resources, commodities, and minerals.
As you would see, ladies and gentlemen, the slide in front of you, we are the largest producer in a variety of commodities. And when you talk about minerals, India produces close to 95 different minerals. We are the third largest producer of coal. And so the list goes on and on. And what does it all show? It basically shows that India is very, very strong in as far as the domestic demand and the resources are concerned. We don't need to import from other countries. ये जो आप ग्राफ अपने सामने देख रहे हैं, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, हमारा कोशिश ये आपको दिखाने की कि हमारे इंडिया के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं। ये क्वार्टर 1 2020 का डाटा है, जिसमें दिखाया गया है कि कई कंट्रीज की जो करेंसी है वो डिवैल्यू हुई है इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर, जिसमें इंडियन करेंसी केवल 3.8% डिवैल्यू हुई है, जबकि सिंगापुर, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, ब्राजील जैसे कई बड़ी कंट्रीज की करेंसी काफी ज्यादा डिवैल्यू हुई है इन कंपैरिजन टू इंडिया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो निशान है लाल रंग का, जो इंडिया को मार्क कर रहा है, तो दैट्स 3.8% ओनली। ये चीज क्यों हुई? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो हमें बाहर से नहीं खरीदने पड़ते। दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर इकोनॉमी। तो ये एक बहुत सॉलिड पॉइंट है कि डॉलर के अगेंस्ट इतनी बड़ी जो कंट्रीज हैं उनके डेप्रिसिएशन ऑफ डिवैल्यू इतना ज्यादा हुआ है और हम खाली 3.8% पे हैं। अब जो मैं नेक्स्ट आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, Now, coming to the next graph, this graph shows the debt that all emerging markets have, with them. Now, emerging markets, if you see this particular graph, there are 3 colors: red, yellow, and green. The red color countries are those countries that are at extremely high risk in terms of their borrowings in proportion to their GDP. Which are the countries that are over here? These countries are Hong Kong, Mexico, Indonesia, Turkey, and Singapore. Now coming to the yellow countries, these countries are at medium risk, and the major country over here is China. They have a debt of $21 trillion forecasted over the next 10 years. Now, I mean, that's a kind of a catastrophic position that they're in now over here. The best part of this graph, ladies and gentlemen, is India. India is in the green zone. We are the least risk country in terms of our borrowings, and this again is a very, very positive sign for our future. जब भी कभी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले एक इंसान का नाम दिमाग में आता है, वो है वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के एक सबसे रईस लोगों में शुमार हैं और कई सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बुक्स के ऑथर भी हैं। ही ऑलवेज इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट इज डाउन। वो हम सबसे विपरीत सोचते हैं और तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट डाउन होती है। जैसे जब भी यूएस में रिसेशन आया वो इन्वेस्ट करते हैं, जापान में सुनामी आई उन्होंने इन्वेस्ट किया। आज इसी को देखते हुए आज अभी एक न्यूज़ आई जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फेसबुक ने अभी जियो के साथ जो इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज, जबकि तब वो उस समय में किया है जब ये पैंडेमिक चल रहा है और इंडियन टेलीकॉम सेक्टर इज नॉट डूइंग दैट गुड। 43,570 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं इंडिया के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल फंडामेंटल्स के अंदर। उन्हें पता है कि आने वाले समय में आफ्टर दिस कोविड-19 इंडिया की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी, तभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया। जियो ने, रिलायंस ने अंडर वाटर ऑप्टिक केबल्स ले कर दिए हैं और आने वाले समय में वो हर एक ऑप्टिक केबल आपके घर तक आएगा, एक तार आएगी जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, डीटीएच और ऐसी कई सारी सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे। ये कल का एक समय है, टेक्नोलॉजी की मतलब एक जीत है। और इसी को देखते हुए मिस्टर आनंद महिंद्रा जी ने एक ट्वीट किया, अगर उस ट्वीट को हम पढ़ें तो वो ये कहता है कि ये सिर्फ 2 लोगों की पार्टनरशिप नहीं है, ये एक साइन है स्ट्रॉन्ग इंडियन इकोनॉमी का, जो कोविड-19 के बाद जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में आने वाली है और ये एक नए इतिहास की शुरुआत है। तो दीज ऑल आर द मैसेजेस जो ये बता रहे हैं कि कोविड-19 के बाद इंडिया इज हैविंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आइए बात करते हैं
कैसे इंडिया की रिकवरी, रोड टू रिकवरी शुरू होगी। The next slide, ladies and gentlemen, shows the IMF predictions of the GDP growth of various countries. And the point to note over here is that India, in the year 2019, we've been estimated to have a growth of in the year in the year 2020, we've been estimated to have a growth of 1.9%. This is again considering the various downfalls that we have had, because of the coronavirus. But in the year 2021, this growth, you would be astonished to know, is predicted at 7.4%, which is one of the highest in the world. And once again, this validates the fact that India is extremely strong fundamentally. And the construction market of India will be the third largest in the world by the year 2025. साहब, इसमें से भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जो इंडिया की ग्रोथ 2021 में 7.4 प्रेडिक्ट की गई है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। हमारा भारत की इकोनॉमी एक वृक्ष है, और वृक्ष जब बड़ा होता है तो टहनी ऊपर हो या नीचे हो, साथ में ग्रो करती है। पूरी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, सब ग्रो करेगा, ये 2021 में प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और ये जो प्रेडिक्शन है अभी, जो हम आपको एक आगे और एक पहलू दिखाने वाले हैं, ये उसके बिना है। अगर वो पहलू होता है और होगा, जो कि आज इंडिया के लिए आज मार्केट के अंदर एक परसेप्शन बना है, तो उसका क्या बेनिफिट होगा, तो इससे भी आगे जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। अभी हम आइए पहले बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। What the government has done, as you would see in the slide, various initiatives like for the RBI has stepped in to help mitigate the impact of the coronavirus lockdown on the business. Secondly, the government reassures the banks of adequate capital infusion because of the coronavirus fears. And thirdly, India has worked on a post-corona crisis revival. Now, this particular slide that you see is focused on exports. What the government has planned is, due to the negative vibes that China is having right now, many of the countries are going to stop buying from China. So that is why India is going to come in and help these particular countries deprived of those goods. In phase one, we are going to focus on electronics, medicals, supplies, and textiles. And in phase two, the emphasis is going to be on gems and jewelry. Now, when we talk about the next slide, it is about the Make in India. This was an initiative launched by the Prime Minister in the year 2014. Now, why was this launched? This was launched with a foresight to make India into a global design and manufacturing hub. There were 25 different industries selected, and some of the industries, just to name, are the automotive industry, aviation, biotech, construction, chemicals, railways, and space technology. Now, the good thing is that many countries have reciprocated India's foresight, and they have pumped in $65 billion in terms of FDI in the year 2019. So till now, we have seen that there are various opportunities for India. What does India have to do? India needs to accelerate the Make in India program. It needs to encourage exports. The ecosystem should just not be for component manufacturing rather than only for assembling. Manufacturing for global markets, and India is extremely well poised because of its low labor cost and skill set. Now, the coronavirus pandemic has actually shown that this is actually a bigger opportunity rather than a threat for India. And this is what we have told you till now. ये पैंडेमिक एक बिगर अपॉर्चुनिटी कैसे है, ये हम आगे दिखाएंगे। और अब तो आप सब लोग भी न्यूज़ और खबरों में ये चीज़ आ चुकी है कि पूरा वर्ल्ड, जो कि चाइना इज द 50% मैन्युफैक्चर ऑफ द वर्ल्ड, वो सब ये बात को रियलाइज कर रहे हैं कि एक कंट्री पे इतना डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, और ऐसा परसेप्शन बन रहा है चाइना के लिए, जिसके कई रीजंस हैं, कई कारण हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। कोरोना वायरस, हम सब आप जानते हैं कि ये वुहान चाइना से आया। लोगों का कहना है कि ये शायद जानबूझ के तैयार किया गया। चाइना ने उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस थी वो छुपाई।
अनलॉफुल मीन्स टू गेन बिजनेस टेक्स। मैं आपको जरा बताना चाहूँगा, अभी जब चाइना के अंदर कोरोना वायरस आया तो पूरा लॉकडाउन हुआ तो शेयर मार्केट गिर गया। तो अमेरिकन, यूरोपियन, जापानीज, कोरियन जिन कंपनीज ने भी वहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे तो उनके शेयर्स भी डाउन हो गए। उस टाइम में नोबडी वाज बाइंग द शेयर्स, नॉट इवन चाइनीज। उस टाइम में चाइनीज गवर्नमेंट ने फंड किया चाइनीज बिजनेसमैन को और वो शेयर्स खरीदने के लिए कहा, और उन्होंने वो शेयर्स खरीद लिए जो बहुत बहुत सस्ती कीमतों पे उनको मिल गए। अब लॉकडाउन जब ओवर होता है तो वो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इससे काफ़ी नाराज़गी रही बिजनेसमैन के अंदर और उन्हें ये बड़ा रूथलेस तरीका लगा। तो जब चाइना की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो जियो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं उससे भी काफ़ी एक गुस्सा है, और इस सब गुस्से का फ़ायदा आने वाले समय में इंडिया को मिलने वाला है। हम सब जानते हैं यूएसए और यूरोप, इनकी इकोनॉमी कितनी बुरी तरह हिट है इस वक्त, और दे गोना हिट बैक। पर ये हिट बैक वॉर में नहीं होने वाला, इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रेड वॉर, एंड वो इंडिया के लिए कह रहे हैं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि जो एंटी चाइना लॉबी है उसने अभी से डिस्टेंसिंग करनी शुरू कर दी है। उन्होंने एक नई कंट्रीज देखनी शुरू कर दी हैं जहां उनकी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं। जापान, कोरिया ऑलरेडी वर्किंग ऑन रिलोकेशन प्लान्स, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना के बाद अगर कोई उस कमी को पूरा कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, एक्सपोर्ट हब बन सकता है, तो वो सारी पोटेंशियल इंडिया के पास है। एंड ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए है कि मेक इन इंडिया हमने पहले ही चालू कर दिया था। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब एक अच्छी चीज हुई, मोदी जी का विजन रहा कि वो स्टार्ट हो गया था, और अब ये कोविड-19 एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है जो उसे और स्पीड देगा। करीबन 1000 ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के टच में हैं, जिसमें से इंडियन गवर्नमेंट ने 300 ऐसी कंपनीज हैं जिनको वो परस्यू कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल्स, टेक्सटाइल और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की कंपनीज हैं, जो आफ्टर लॉकडाउन इंडिया उनसे बातचीत में और चाहेगी कि वो जल्दी इंडिया में प्लांट्स लगाएं अपने। आज एप्पल हम सबसे इतना जुड़ा हुआ है, एप्पल की चाइना में एक बहुत बड़ा प्लांट है जिसे वो इंडिया में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी अ 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। एप्पल जैसी कंपनी जब किसी भी कंट्री में आती है तो उसके साथ 200 से 250 उसकी सब्सिडरीज हैं जो उसके लिए काम करती हैं, वो साथ में शिफ्ट करती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, प्लांट होगा जो इंडिया में आएगा, जिससे मेक इन इंडिया को काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी। अगर हम बात करें साउथ कोरिया और चाइना, साउथ कोरिया अपनी जो हुंडई स्टील और पॉस्को है वो उसे शिफ्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। दे आर इन टच विद इंडियन गवर्नमेंट। वो करीबन 5000 एकड़ लैंड है जो आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, जो जल्दी हो जाएगा। जापान और एक कदम आगे आया है, उसने 2 बिलियन का फंड इशू किया है अपने सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज के लिए कि वो चाइना से बाहर मूव आउट हो। This particular slide, we talk about the US. It's supporting firms that are weighing India as an alternate to China. Now, there's a very, very simple reason for this. This is again due to the negative vibes that China has created in the world with this advent of the coronavirus. And it's a very, very positive news clipping that you're seeing over here. A big superpower like US has backed India, and this is going to open a lot of markets for the Indian industries. It's also due to the efforts that the Prime Minister has taken in terms of mending his diplomatic relations with the US. इसमें एक और हमारी इकोनॉमी को जो सपोर्ट करती है चीज़, वी आर द वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। आज हमारी 50% से नीचे 50% जनता जो है वो 25 साल की उम्र की, और 65% आर 35 ईयर्स बिलो, जो कि हमें एक यंग नेशन बनाता है। चाइना और जापान से हम काफ़ी आगे हैं, और यंग नेशन होने की वजह से एनर्जी स्किल सेट बेटर होता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे गति देगा। तो ये हमने आपको बताया अभी तक इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और साहब एक बात और शेयर करना चाहूँगा, अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स या जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी बातें मैंने सुनी है, या फिर मैंने जो भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, सब ने एक बात ज़रूर बोली है कि इकोनॉमी शार्प ग्रोथ लेगी एकदम। तो वो इस बात को वैलिडेट करता है कि हम वी शेप में ही ग्रो करेंगे कर्व में, एंड दैट शोज कि आगे की ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज होगी।
अब आइए लेट्स टॉक अबाउट रियल एस्टेट कि इसका फ्यूचर क्यों ब्राइट है। लेकिन जब भी हम रियल एस्टेट की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं कि हाउ रियल एस्टेट विल परफॉर्म आफ्टर लॉकडाउन, व्हाट मेजर्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टू बूस्ट दिस सेक्टर, व्हाट इज द इन्वेस्टर्स माइंडसेट राइट नाउ। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सबके दिमाग में ये आते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, बिल्डर पैसे और तो नहीं कम कर देगा, इकोनॉमी कब तेजी पे आएगी, मेरी सेकंड इनकम कहाँ से शुरू होगी, या प्रॉपर्टी डिलीवर होगी। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको जो भी दिखाया वो इसलिए दिखाया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है और आने वाले समय में हम ग्रो करेंगे ही करेंगे। और साहब, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इस चीज़ की बात नहीं कर रहा कि 6 महीने में पैसे बढ़ाने हैं। हम 2 से 3 साल 4 साल के होराइजन की बात करते हैं। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानता हूँ 3 से 4 साल में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जिस तरह का अभी माहौल बना है, जैसी खबरें आ रही हैं, आज सुबह भी योगी जी ने खुल के ऐलान करा है कई सारी कंपनीज के नाम लेके कि वो जो मांगेगी वो मैं देने को तैयार हूँ, वो यूपी में आए। आज हमारे मेक इन इंडिया से एक और चेंज आया है इंडिया के अंदर कि आज हमारे मुख्यमंत्री समिट, हर राज्य के मुख्यमंत्री एक समिट ऑर्गेनाइज करते हैं, बाहर के देशों से कंपनीज को बुलाते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे ऑफर्स देते हैं। ये ग्रोथ का इंजन है जो शुरू हो गया है और आप जल्द ही देखेंगे आफ्टर कोविड इंडियन इकोनॉमी विल बी बैक ऑन ट्रैक वेरी सून। आइए बात करते हैं कि क्या मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है। Now, the RBI has approved 10,000 crores for the National Housing Bank. It's also reversed the repo rate to by 25 BPS. It's now at 3.75. What does this mean? This means that the interest on the home loans would be much lower. It would make more, it will be making more conducive for home buyers to purchase homes, and the project loans for commercial real estate projects have been extended. रेपो रेट का मैं आपको इफेक्ट आगे भी बताऊंगा, बट रेपो रेट से क्या है कि अब आज आरबीआई बैंकों को 3.75% का रेट देगी अगर वो पैसा रखते हैं आरबीआई के पास। तो बैंक भी कोशिश करेंगे कि क्यों ना 7-7.5% पे ये पैसा आगे कस्टमर्स को दे दिया जाए। इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी जिसका हम कब से वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि वो जो भी सपोर्ट होगी रियल एस्टेट को देगी, क्योंकि रियल एस्टेट सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। तो इकोनॉमी को उठाने के लिए रियल एस्टेट को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत समय से हमारी एक गवर्नमेंट से डिमांड रही है कि रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री घोषित कर दिया जाए। इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। और जिस तरह के उन्होंने अनाउंसमेंट करे, हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे लिक्विडिटी आएगी मार्केट में। अभी स्ट्रेस फंड गवर्नमेंट ने जारी किया था, तो अभी आज सुबह ही कई लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि फाइनल हो गया किस किस को फंड मिलने वाला है, उससे भी लिक्विडिटी बढ़ेगी। प्लस हो सकता है गवर्नमेंट आने वाले समय में रजिस्ट्री की कॉस्ट कम कर दे, टैक्सेशन बेनिफिट्स दे दे। ये सब चीजें भी हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को एक गति प्रदान करेंगी। ये जो रेपो रेट कम हुआ उसका ये इफेक्ट पड़ा कि जो होम लोन रेट्स हैं वो 7.15% तक आ गए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। मतलब हमने एक समय में 10.75 और 11% तक पे होम लोन लिया है। अगर 25 लाख का आपने उस वक्त मकान लिया और 5 लाख अपने पास से दिए और 20 लाख रुपए आपने बैंक से फंड कराया, तो उसकी इंस्टॉलमेंट 22,000 होती थी, जो अगर आज आप सेम अमाउंट का लोन लेते हैं तो वो 14,000 रुपए होगी। इससे भी एक पुश मिलेगा हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग को और टोटल हाउसिंग सेक्टर को, बिकॉज ये लोगों को प्रेरित करेगा मकान लेने में। लॉकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो शायद हम सब यही सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट बिल्कुल बंद हो गया, पर ऐसा नहीं है। गोदरेज कंपनी ने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जो उसने फर्स्ट क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से ज़्यादा माल बेचा है और उसमें से ज़्यादातर यूनिट जो है वो मार्च में बेची हैं। अभी लोधा डेवलपर जो मुंबई बेस्ड हैं, उनकी भी एक रिपोर्ट आई है कि टोटल उन्होंने 300 यूनिट बेची हैं, जिसमें से 80 यूनिट 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन बेची हैं। तो ये चीज़ शो करता है कि रियल एस्टेट में इतना स्लो डाउन नहीं है। क्यों, इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो मीडिया कवरेज आ रही है वो सब ये कह रहे हैं कि कोविड-19 की तबाही के बाद बूम के लिए तैयार भारतीय रियल एस्टेट। सरप्राइजिंग बट ट्रू, रियल एस्टेट इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक टुडे। क्यों?
क्योंकि अब तक सबसे कारगर दवाई कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन अगर कोई बनी है तो दैट इज एंटीडोट इज होम, जो कि बिल्डर्स बना रहे हैं, क्योंकि हम हमारी सुरक्षा आज घर ही कर रहा है। और घर में रहने के कारण क्या लोगों के माइंडसेट में चेंज आया है। हम लोग करीबन 30 से 35 हजार लोगों से हमारी टीम डेली बात करती है, और उनकी बातों के अनुसार उनका माइंडसेट क्या चेंज हुआ है इस कोरोना से, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन ये भी है, व्हाई, वेयर, व्हेन टू इन्वेस्ट, वो भी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। आइए हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। आज अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम सब इंडियंस की जो सोच रहती है वो सेविंग्स की रहती है, और इसीलिए अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अगर हम जीडीपी से कंपैरिजन करें तो अमेरिका में जो लोन्स हैं, होम लोन्स हैं, वो 80% ऑफ द जीडीपी। अगर हम चाइना की बात करते हैं, इट इज़ मोर देन 40%, एंड इंडिया इज अराउंड 20-22%। तो ये चीज़ शो करता है कि हम सेविंग्स में बिलीव करते हैं और प्लस लोन्स लेते हैं तो उन्हें जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। आज अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो म्यूचुअल फंड है, हमारे पास शेयर मार्केट है, हमारे पास एफडीज हैं, गोल्ड है और रियल एस्टेट है। म्यूचुअल फंड्स मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताना चाहिए। अभी फ्रैंकलिन जो मार्केट में उनकी न्यूज़ आई है कि 26,000 करोड़ कहाँ गया उन्हें नहीं पता, वो कैसे पे बैक करेंगे, लोगों का पैसा डूब गया। अगर हम बात करें शेयर मार्केट की तो पिछले 3 महीने में 36 से 40% मार्केट शेयर मार्केट डिप हुआ है। अगर हम बात करते हैं चिट एंड फंड कंपनीज की तो वो आई और चली जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की तो गोल्ड इतना वोलाटाइल रहा है पिछले कुछ दिनों में कि हिम्मत नहीं हो पाती लगाने में, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रखे कहाँ चोरी ना हो जाए, वो एक प्रॉब्लम है। अब जो चीज़ हमारे पास ऑप्शन रह जाता है वो रियल एस्टेट है, जिसका एक बेसिक प्राइस है, गवर्नमेंट ने उसका एक सर्कल रेट डिसाइड किया हुआ है। ब्रिक एंड मोटार, जो सीमेंट, सरिया, ईट, इन सब की एक रेट है जो हर साल बढ़ रहे हैं, तो उसकी एक बेसिक कॉस्ट है, उससे नीचे नहीं जा सकता। आज मार्केट में ये बात कही जाती है कि रेट टूटेगा, रियल एस्टेट का रेट टूटेगा। आप सही कह रहे हैं, टूटेगा, लेकिन प्राइमरी का नहीं, सेकेंडरी का टूटेगा। जो चीज 4,000 रुपए की खरीदी और वो 14,000 रुपए की हो गई, आज उसकी कीमत अगर 9,000 आ जाती है तो वो रेट टूटेगा। लेकिन जो चीज लॉन्च ही 3,500 पे हुई और आज भी 3,500-4,000 रुपए की है, वो बेसिक प्राइस से नीचे कभी नहीं जाती प्राइमरी मार्केट के अंदर। मतलब इट हैज बीन अ हिस्ट्री, आप पूरे इतिहास को उठा लीजिए, आपको कभी भी प्राइमरी मार्केट से नीचे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। हमेशा सेकेंडरी मार्केट टूटता है, जिससे हम कंपेयर कर ले तो हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं। आज जो मैं आपसे बात कर रहा था कि लोगों का माइंडसेट क्या चेंज हुआ है कोरोना के बाद, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी बूस्ट करेगा, क्योंकि आज हम सब लोग घर से काम करने लगे हैं और कंपनीज को दिखने लगा है कि ये बड़ा सस्ता एक तरीका है आगे अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए, तो वो लोग भी इसे प्रमोट करेंगे, तो उसके लिए घरों की डिमांड बढ़ेगी। पीपल विल शिफ्ट टू बिगर होम्स, ये तो मेरा अपना भी सोचना, और आप भी इस चीज़ से मानेंगे कि आज जब हम अपने घरों में रुके तो हमें ये कमी खली कि अगर शायद जो 2 BHK वाला है वो सोच रहा था कि मुझे 3 BHK होता, मेरे पास 3 वाला 4 सोच रहा था और 4 वाला उससे बड़ा, तो शायद हम इस अपने परिवार के साथ इस समय को ज़्यादा बेहतर गुजार पाते। सबसे ज़्यादा अगर किसी को कमी खली अपने घर की तो वो टेनेंट्स हैं, वो किराएदार हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किराए के घर पे रहते हैं तो हम उसकी फर्निशिंग्स चेंज नहीं करते, हम उस पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, उसमें एमिनिटीज़ नहीं करते, बिकॉज वो किसी और का घर है तो हम लगाते नहीं। तो आज उन्हें सबसे ज़्यादा कमी खली कि अपना घर होता तो वो सारी सुविधाएं होती, तो शायद मैं ये समय और ज़्यादा बेहतर व्यतीत कर पाता। एक दूसरी परेशानी किराएदार को सबसे बड़ी होती है कि उसका पड़ोस नहीं बन पाता, रिलेशनशिप नहीं बन पाती, बिकॉज 1 साल एक घर में रहता है, 2 साल बाद दूसरे घर में चला जाता है, तो वो पड़ोस नहीं बन पाता। तो ये कमियां इस बार कोरोना ने हमें दिखाई। एक एक्सपर्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मैं किसी वेबिनार को अटेंड कर रहा था और किसी एक्सपर्ट ने कहा, और आज टीवी मीडिया भी यही बात कह रहा है कि ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, इंटरनेशनल ट्रैवल कम हो जाएगा, बाहर खाना पीना थोड़ा कम हो जाएगा, शॉपिंग कम हो जाएगी। तो ये जो पैसा बचेगा, ये जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट निकल कर आया है, जो कि रियल एस्टेट में लगेगा। एनआरआई कस्टमर्स, डॉलर ने 10% की जंप ली है और ये उनके लिए बड़ा सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का, बिकॉज 10% का बेनिफिट उन्हें डॉलर का मिलेगा और बाकी जो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो वो उनको एक अच्छा डील बन जाती है उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने की।
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में पिछले 2 साल से तेजी आई है और आगे भी रिटेल कॉमर्शियल्स के अंदर तेजी देखी जाएगी। एक ट्रेंड और बढ़ेगा, वो है सेकंड इनकम का। इस लॉकडाउन के अंदर हम सब ने ये महसूस किया कि अगर एक सेकंड इनकम और होती तो सपोर्ट मिल जाती। तो वी एक्सपेक्ट कि आने वाले समय में एक सेकंड इनकम की जरूरत पड़ेगी। अभी अगर हम बात करें साहब, तो चाइना सबसे पहले कोरोना का अटैक हुआ, दिसंबर में शुरू हुआ, वहां से कोरोना, वहां लॉकडाउन हुआ और उस फाइट के बाद मार्च में जब कोरोना खोला गया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद कई बातों पे अगर आप विश्वास ना कर रहे हो तो इस बात पे आपको करना पड़ेगा कि आफ्टर लॉकडाउन क्या हुआ, हम सब ये जानना चाह रहे हैं। तो चाइना का जो रिजल्ट है वो बड़ा शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था कि जब ट्रेवल डेस्टिनेशंस खुले तो ह्यूज क्राउड देखा गया, मॉल, शॉपिंग सेंटर सब खोल दिए गए। एक लग्जरी क्लोथिंग चेन है AMS, जिसका शंघाई में शोरूम है, जब वो 3 महीने बाद खुला साहब, तो 20 करोड़ की सेल पहले दिन में की, विच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। एक और ट्रेंड देखने को मिला कि वहां रेसिडेंशियल डिमांड इंक्रीज हो गई। तो जो माइंडसेट हमने डिस्कस करे थे लोगों के कोरोना के बाद चेंज हुए, वो चाइना में इंप्रूव हुए हैं। और ये सब न्यूज़ आप देख सकते हैं और रीजंस भी हैं कि क्यों वहाँ डिमांड बढ़ी है। और जो सब रीज़न हमने आपसे डिस्कस करे वही एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर एक डाटा के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो दिसंबर में जो डिमांड चाइना में घरों की थी, अफोर्डेबल हाउसिंग की थी, वो मार्च में 65% बढ़ गई। और ऐसी ही उम्मीद हम इंडिया से करते हैं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो इसी माइंडसेट की वजह से हर जना, क्योंकि इस वक्त सिस्टम ऐसा बन गया है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया है और घर अब हर आदमी लेना चाहेगा, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि घरों में तेजी आएगी। आइए अब हम बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ करें। तो अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो पूरे इंडिया का जो ग्रोथ इंजन रहा है रियल एस्टेट में वो दिल्ली NCR रहा है। और अगर दिल्ली NCR की बात करता हूँ तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा हमेशा लीड करते हैं। उसका रीज़न है कि जिस तरह से वहाँ पर जो ग्रोथ है और जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ आने वाले हैं, वो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं, जिसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बात करते हैं किसी भी शहर की, तो अगर आप गौर देंगे तो हर शहर को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए एक इंडस्ट्री होती है जिससे वो शहर चल रहा होता है। अगर हम बात करते हैं मुरादाबाद की तो ब्रास इंडस्ट्री है मुरादाबाद सबसे बड़ी। अगर हम बात करते हैं आगरा की तो वहाँ ताजमहल टूरिस्ट स्पॉट है, लेदर इंडस्ट्रीज हैं, संगमरमर मार्बल का भी काफ़ी काम होता है। ऐसे ही अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो ये अकेली जगह है जहाँ पे एजुकेशनल हब है, इंडस्ट्रीज हैं, IT इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक होंडा, हॉलैंड ट्रैक्टर्स, सैमसंग, पैनासोनिक, बहुत फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर। और इसकी कनेक्टिविटी इसे यूनिक बनाती है। आने वाले समय में यहाँ जेवर एयरपोर्ट आने वाला है, DMIC आने वाला है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, NH24 से गौतम बुद्ध नगर कनेक्टेड है। अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ तो ये हमें नोएडा से आगरा लेकर जाता है और ये एक कॉमन बहुत कम समय में लेके जाता है। तो सारा जो टूरिस्ट इंडिया में आता है वो टोटल यमुना से ट्रेवल कर रहा है आज की डेट में ताजमहल देखने के लिए। अगर ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ तो ये एक आउटर रिंग रोड बन गई है जो दिल्ली के चारों ओर बाहर से घेरती है और जो आज काफ़ी यूजफुल है। इससे काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज हमारी जो गौतम बुद्ध नगर की हैं उस एरिया में, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। नोएडा एक्सप्रेसवे, NH24, NH21, DND, FNG जो आने शुरू होने वाला है, जो फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद को जोड़ेगा। मेट्रो ऑलरेडी पूरे गौतम बुद्ध नगर में चालू है और आगे भी प्रपोज है। अगर मैं बात करता हूँ DMIC की तो ये आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो गौतम बुद्ध नगर में बुड़ाकी, ग्रेटर नोएडा के पास एक जगह है जहाँ पे इसका टर्मिनल बना है जो कि 52 लेन्स का है, जिसमें डेडिकेटेडली फ्रेट के लिए इसे बनाया जा रहा है। आज अगर कोई ट्रक मुंबई से चलता है तो उसे 7 से 10 दिन मिनिमम लगते हैं दिल्ली टच करने में। आने वाले समय में 100 की स्पीड से ऐसी ट्रेन चलेंगी जो
24 घंटे में आपको मुंबई से दिल्ली पहुंचा देंगी, और उसके ऊपर वो लोडेड ट्रक होंगे जो वहां से चढ़ेंगे और यहाँ उतर जाएंगे और अपने डेस्टिनेशन की ओर मूव कर जाएंगे, विच इज गोइंग टू बी अ मतलब बहुत बड़ी क्रांति होगी फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए। जेवर एयरपोर्ट जो एक्सपेक्टेड है कि 2023 या 2024 में इसका एक लेन स्टार्ट हो जाएगा, और ग्रेटर नोएडा, नोएडा ऐसी जगह हो जाएंगी जो तीनों ट्रांसपोर्ट के मीन से जुड़ जाएंगे, रोड, एयरपोर्ट एंड रेल नेटवर्क। तो ये इसे यूनिक बनाएगा और इसकी ग्रोथ का इंजन बहुत तेज भागेगा। उसके अलावा एक और कॉरिडोर जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो कि 1290 किलोमीटर का है, जो 12 घंटे में आपको मुंबई बचाएगा, जो कम से कम 4 से 5 घंटे का समय कम कर देगा, वो भी नोएडा को टच होके जा रहा है। अब मैंने आपको गौतम बुद्ध नगर के बारे में बताया, ये एक बहुत अच्छी जगह है जहां हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन और ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, मेरे 12 से 13 साल के कैरियर में मैंने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखी जो इस लॉकडाउन के अंदर आई हैं। जैसे अनबिलीवेबल पेमेंट प्लान साहब, बात करूं तो 40-60 यानी 40% अभी दीजिए, 60% पोजीशन पे दीजिएगा, यानी 10% आप दे दीजिए, 30% बैंक फंड कर देगा, जिसकी एक बहुत छोटी EMI है जो आपको देनी पड़ेगी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप 40% पे करते हैं और 60% पोजीशन पे देते हैं। आज अगर हम 3 से 4 साल की ड्यूरेशन की बात करें और जितना अभी हमने ग्रोथ देखी, इसका 30 से 40% भी अगर मार्केट में आ गया तो 1000 से 1500 स्क्वायर फुट कम से कम बढ़ जाता है। आप पैसे दे रहे हैं 40% के और प्रॉफिट जो लेते हैं वो 100% का लेंगे स्क्वायर फुट के अंदर, तो वो प्रॉफिट अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है कि 10% पैसा दिया, 30% की खाली आपने EMI दी, और जो प्रॉफिट लिया तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर। हम यहाँ नहीं रुकते, बाद हमारे पास 30-70 विच इज अनबिलीवेबल, 20-80 भी अवेलेबल है साहब, और साहब व्हाट टू बीट 1090 पेमेंट प्लान भी अवेलेबल है, विच इज समथिंग अमेजिंग। उसके अलावा कई सारे लॉकडाउन के ऑफर्स हैं, जैसे बेस्ट प्राइसेस, EMI waivers, double your money, discount up to 10%, 12% assured returns, lowest property prices, प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम्स, यानी कि आपको अगर ये डाउट है कि कल इसकी कीमतें और कम होंगी तो बिल्डर गारंटी दे रहे हैं कि प्राइसेस यही रहेंगे, वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको। अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स, मिनिमम बुकिंग अमाउंट, 100% रिफंड ऑन कैंसिलेशन, सर व्हाट एल्स यू वांट। तो ये कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जो हमें कहते हैं कि भाई दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक शख्सियत से मिलाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो आपको 3 मिनट 4 मिनट जो भी वो दे सकें रियल एस्टेट के बारे में बताएं। ये सिर्फ 26 साल के हैं और जब से ये इस सेक्टर में आए इन्होंने अपनी कंपनी संभाली, कंपनी के नाम में इन्होंने 4 चांद लगा दिए। आज ये दिल्ली NCR में लीडर हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। नन अदर देन मिस्टर यश मेगलानी, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। इतनी एनर्जी है कि हमें खींचे रखते हैं, भागते रहे कि हम एक यंग नेशन है। ये प्रूव करते हैं कि यंग जो एज है, ये यंग नेशन हम जो हैं, ये हमें कैसे आगे ले जाएगा। तो मैं यश भाई को आपसे रूबरू कराना चाहूँगा, बस 30 सेकंड का समय मांगूंगा और यश जी से आपसे रूबरू कराता हूँ। बस थोड़ा सा और इंतजार, कनेक्टिविटी इशू है। 1 मिनट के अंदर यश भाई ज्वाइन कर रहे हैं।
प्लीज़ एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट ओनली। हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपने घरों में रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सारे नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने। लीजिए, यश भाई इज हियर। थैंक यू यश भाई फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। हाय एवरीवन, आई होप सब अपने घर पे हैं और सेफ हैं एंड एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। थैंक्स वेल्थ क्लिनिक फॉर इनवाइटिंग मी अप। सो आज हम बात करते हैं इकोनॉमी की। जो आज हमारी इकोनॉमी है, मेरे हिसाब से हिट है इकोनॉमी में, विच आई फील आगे जाके थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, बट जो चीज़ ऊपर नीचे आती है ऊपर भी आती है। हम रिलेट कर रहे हैं पिछले 30 साल से। सो my education and hospitals also we are entering into right now. So we are doing about 10,000 apartments are under constructions है। हम लोग approximately about 7,000 inventories हम इस साल डिलीवर कर देंगे, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं मेरे हिसाब से जो रेपो रेट आज जो चल रहा है हमारा, विच इज द लोएस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, 4.4, मेरे हिसाब से आज से समझो 2013 या 14 में हुआ था लोएस्ट। जब रेपो रेट कम होता है हमारी मार्केट नेक्स्ट लेवल जाती है। सो दैट इज द ग्राफ पीपल टॉक अबाउट, एंड वो आज तक होता है और वो जो चीज़ कहते हैं और होता ही है। जब रेपो रेट कम होता है तो हमारी मार्केट ऊपर जाती है। आप देखेंगे आज हमारा रेपो रेट 4.4 है, तो मेरे हिसाब से सी अ डिफरेंस इन द मार्केट इन टोटलिटी। ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा आपको, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। जो रियल एस्टेट जो पहले था आज से 2-3 साल पहले, जो मार्केट पहले थी, वो आज आपको डिफरेंस फील होगा। सो मेरे हिसाब से जो आज आपको सबको वैल्यू समझ आ चुकी होगी, घर घर ही होता है। बिकॉज आज आपने घर हर जगह इन्वेस्ट करके देख लिया, म्यूचुअल फंड हो गया, चाहे आपका बॉन्ड्स हो गए, चाहे आपके शेयर मार्केट हो गई। जिसने भी इन्वेस्टमेंट अपने हाउसिंग में करी है उसको फील हुआ है कि हाँ मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया है। चाहे पैसे कम हुए हैं चाहे बड़े हैं, अल्टीमेटली चीज आपके हाथ में है। नुकसान कभी नहीं होता मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में। पैसे कम बढ़ती होते रहते हैं पर अल्टीमेटली एट द एंड यू विल अर्न अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। एंड मेरे हिसाब से कमर्शियल मार्केट में जो मेरा कि कमर्शियल हिलावट आएगी, वहाँ पे 1-8 साल का हिट आएगा, बिकॉज हम लोग रेस्टोरेंट मॉल्स वॉल्स जाना कम करेंगे। अभी एक रिसेंटली स्कीम आई है जो भी TCS ने अनाउंस किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख एम्प्लॉयज विल बी डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है वर्क फ्रॉम होम का, तो 2 साल के इन्होंने ना अनाउंस किया। तो कमर्शियल मार्केट में वहाँ मान सकते हैं कि हमें हिट आएगा, बट एज फार एज दी हाउसिंग इज कंसर्न्ड, अफोर्डेबल हाउसिंग, तो हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है हमें अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। वहां पे हमें एक सी डिफरेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द मार्केट। आज हम जो मार्केट मासिस मार्केट में काम क्यों करते हैं, बिकॉज हमें रिजल्ट चाहिए, बिकॉज सेलिब्रिटी ज्यादा है, कैश फ्लो इज देयर। मासिस मार्केट हमेशा चलती है, दैट इज अ डिफरेंस। आप लग्जरी सेगमेंट देख लो, आप कुछ भी देख लो, पर मासिस मार्केट में जो आदमी काम कर रहा है वो हमेशा स्टेबल रहेगा। तो मेरे हिसाब से मासिस मार्केट को ही आप लोगों को फोकस करना चाहिए। और रेटों की बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। मैं ये मानता हूं जो रेट आपको आज मिल रहे हैं ये रॉक बॉटम रेट्स हैं, इससे रेट आपको कभी कम मिल ही नहीं सकते। जो रेट हम लोग आज हम बेच रहे हैं या क्लाइंट्स ले रहे हैं, आप खुद डिफरेंस फील करेंगे अगले 2-3 महीने में। वो रेट ऊपर ही जाने हैं, वो नीचे नहीं आने। बिकॉज क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो है वो बढ़ती जा रही है हम लोगों की, और जो हमारी लैंड प्राइसिंग है वो भी बढ़ रही है, पर हमारे प्राइसिंग जो मार्केट की प्राइसिंग है वो नहीं बढ़ रही थी, वो कम हो रही थी। बट आप अब खुद डिफरेंस फील करेंगे, बिकॉज रॉक बॉटम रेट्स में हम लोग आ चुके हैं, इससे नीचे रेट कभी नहीं हो सकते। तो आप ये मानो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आप लोग इस ऑफर को अवेल करें जो लॉकडाउन में डेवलपर्स ने ऑफर निकाल रखे हैं। ये जो अमेजिंग ऑफर्स कभी नहीं आने, लाइफ टाइम ऑफर्स हैं मेरे हिसाब से। जो आपको ये पैसे आपको 1 का 2 हो रहा है, या कोई भी स्कीम वॉट एवर इट इज, कोई भी डेवलपर हो, कहीं भी इन्वेस्ट करें, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी, इससे बेटर मार्केट, इससे बेटर आपको ये जो हमारी कंट्री जो डेवलपिंग होने वाली है, डेवलप हो रही है, बिकॉज एवरीवन इज आइंग ऑन आवर कंट्री की इंडिया क्या रोल प्ले करेगा, इंडिया क्या करेगा। हर पूरी दुनिया बात इस बारे में करे कि इंडिया का क्या होगा।
तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हर चीज़ में बिल्कुल पता ही है, बिल्कुल ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव गाय। तो उनका जो ड्रीम है चीज़ों को नेक्स्ट लेवल लेके जाना। कल भी आज भी पूरी गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है, सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, सबने डिस्कस किया कि व्हाट टू डू नेक्स्ट फॉर आवर इकोनॉमी। सो पीपल आर ट्राइंग टू डू समथिंग नेक्स्ट लेवल। गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है बिकॉज इस टाइम आप रेपो रेट एक देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील करें बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्टिव है। तो जहां गवर्नमेंट सपोर्टिव है वहां हमें रिजल्ट आता है। और उसके बाद क्या है, आप रेपो रेट देख लीजिए, हर चीज के बेनिफिट है। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और अवेल जरूर करें, कुछ ना कुछ बाय जरूर करें, बिकॉज ये बेटर अपॉर्चुनिटी कभी आपको लाइफ में नहीं मिलेगी। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टाइम। थैंक यू राजेश भाई फॉर योर टाइम। मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इतना समय दिया। और आप अगर हमारे पास जो अवेलेबिलिटीज़ हैं आज मार्केट के अंदर, वी हैव मेनी ऑप्शंस जो कि प्री लीज प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो वो हमारे पास है। अफोर्डेबल और लग्जरी हाउसिंग के कई प्रोडक्ट्स हमारे पास है जिसमें बहुत शानदार स्कीम्स आई हुई हैं। उसके अलावा वी हैव सम स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो मतलब बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो हर तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास है। आपके एसोसिएट जिसके थ्रू आपने वेबिनार ज्वाइन किया था, आप उनको बात कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में और बेटर डिटेल देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारी इस कोशिश तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और प्लीज़ हम एक इसके बाद आपको एक लिंक भेजेंगे जो एक क्वेश्चनेयर है, प्लीज़ उसको फिल कीजिएगा, जिसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा और आप किन टॉपिक के ऊपर आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे, कोई भी मुद्दा आप चाहेंगे जिस पर बात की जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी आपके लिए दोबारा हाजिर हों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, सी यू, बाय बाय। Thank you very much.